जुलाई, लाइक यू नो दैट लद्दाख इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल ये पहला एडिशन है लद्दाख में, और हमने ये इंडियन आर्मी के साथ किया है। इस फेस्टिवल की जो मेन रीज़न है करने की वो है लद्दाखी लोकल बैंड्स को इंक्लूड करो, प्रमोट करो, और इंडिया के जो नेशनल बड़े बैंड हैं उनके साथ प्ले करने का उनको एक बड़े स्टेज पे मौका मिले। तो इंडियन आर्मी को हमने रिक्वेस्ट की और इंडियन आर्मी ने इनफैक्ट ये इसको इंक्लूड किया, और जो लद्दाखी लोकल बैंड्स वो भी बहुत मज़ा कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ साथ। ये इसका मेन पर्पज़ था। दूसरा जो पर्पज़ था, हमने एक रिजांगला में, जो रिजांगला के वॉरियर है कुमाऊं 13 चार्ली के, उनके लिए एक नया रिजांगला एंथम जॉय बर्मा ने लिखा है, वो उसको रिलीज़ करने जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। तो ये पहला एडिशन है, और पहले एडिशन में हम लोग रिस्पॉन्स से बहुत खुश हैं, एंड होप आगे के 2 एडिशन जो अगले साल और उसके अगले साल होने वाले हैं वो ठीक से और बड़े हो जाएंगे। इन सब के लिए मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स श्री ताशी गाल्सन, एंड ऑल्सो Ladakh Autonomous Hill Development Council, who's been keen supporter for this event, and UT administration of course is always there to extend their help and in logistic and all the other supports. So thank you so very much. I will let you speak to our guest of honor, Richard Chadha. Thank you. So guys, any questions for me? I'm very excited to be here, and I'd also like to thank the Indian Army. I'd like to thank Mr. Sushil Chaudhary for bringing me here. He's from Picture Time, and it's a very, very innovative concept that could potentially change how we watch films, and would also take care of a problem we are having in terms of distribution for cinema screeners in India. And I'd like to thank, of course, the Ladakh Hill Development Council for trying to do this for the people of Ladakh. And I especially come to support local Ladakhi bands and to see them grow. And I'm hoping in the next few years this becomes a world-class festival and invites talent from all over the world. This international music festival, why is it in Ladakh? Why did you choose Ladakh for this? Is there any? Okay. Can you find better place than Ladakh to host such a large festival, like beautiful nature? And if you talk about international music festival, location is always a very, very important aspect of music festivals. We are not saying that we are doing this festival to promote tourism in Ladakh, but tourists do come here, and beautiful location was the second reason. And third, we feel local Ladakhi talent is super. Like you will experience some of the local Ladakhi band today. You must have seen local Ladakhi band in last 2 days. So that was the main reason. Thank you. Is it going to be an annual feature, or it will be only for this year? We are ready with 3 editions. So next year it will happen. Then subsequent year it will happen, and then we would talk to Ladakh administration how they would like to take it forward. तो मैम आप क्या स्किल देख रहे हैं जो यहाँ के लोकल्स है ना, हाँ। उनमें क्या स्किल है? यहाँ के लोकल्स में क्या स्किल है? पहले तो दिल के बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी जाओ मुस्कुराते चेहरे आपको मिलते हैं। किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाओ, किसी से मदद मांगो, लोगों में बहुत आत्मीयता है यहाँ पे। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ के लोकल लद्दाखी बैंड से मिलने के लिए आज शाम को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो म्यूज़िक होता है या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी होता है, बॉलीवुड का होता है, बॉम्बे बेस्ड पॉप स्टार्स होते हैं, पंजाब के होते हैं, उनको फिर भी बहुत सारा एक्सपोजर मिल जाता है। पर जो हमारे भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अगर हम हर ज़िले हर प्रांत के टैलेंट को इनकरेज करें तो ही जाके हम म्यूज़िक में भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जिस तरह से मतलब IPL के आने से क्रिकेट में कम्पेटिटिव स्पिरिट आई है, हर प्रांत से अलग अलग टैलेंट को हम खोज पाते हैं। उस तरह से आप सोचिए अगर म्यूज़िक में भी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इंडस्ट्री की बात की तो एनुअल फीचर्स में, एनुअल इवेंट्स में एक बार मिलना, इसके बाद they are cut off from the rest of the for almost 6 months. How you are going to influence the industry, film industry especially, to give a bigger
much bigger opportunity for. I don't think that the local talent will need the film industry. If there is a potential for having a collaboration, then for sure, yeah, why not? It will only increase eyeballs, but I don't think the idea is to keep them, to give so much encouragement and impetus for the local musicians to grow that they don't need anybody. And as far as being cut off from the world for 6 months is concerned, now we have the internet, you know. Now everybody has Instagram, YouTube. They can make their own music and release it as they want. एक ये अभी लोकल आर्टिस्ट को या सिंगर्स को प्रमोट करने का आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनको ऐसा कुछ स्टेज मिल जाता है तो आगे बढ़ने का चांस भी मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन कभी क्या होता है, पिछले बार इसी होटल में एक FM का लॉन्च हुआ था, उसमें भी लोकल की बहुत बात। अभी आज लोकल तो छोड़े, सिर्फ पंजाबी गाना सुनते हैं हम उस FM पे, उससे बढ़ के कुछ सुनते ही नहीं लोकल पे तो कुछ भी। अच्छा। आगे ऐसा तो ना। नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। और जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए मैं तो यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ, मैं आज क्लोजिंग सेरेमनी करके फिर चली जाऊँगी, पर जो सुशील सर है उन्होंने आपको अगले तीन सालों का प्लान बना दिया है। तो अगर आपको लगता है इस साल वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो आप अगले साल उनको यहीं बिठा के उनसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने तो कहा था ये होगा वो होगा, पर पंजाबी म्यूज़िक क्यों चल रहा है। नहीं बिल्कुल। एक बात है, जैसे जब FM का लॉन्च हुआ था, म्यूज़िक इसलिए नहीं चलता कि कोई चलाना चाहता है, म्यूज़िक इसलिए चलता है कि लोग सुनना चाहते हैं। अब जैसे FM चैनल आना ये खुशी की बात थी, बट आपके जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, जो लोग हैं जो डिमांड करेंगे, जो चाहेंगे, उसी को एक कंपनी प्रमोट करती है। अब जैसे अक्सर बॉलीवुड या साउथ की फिल्मों को अभी रिसेंटली ये ब्लेम मिलता है कि इन्होंने लोकल रीजनल फिल्मों को ख़त्म कर दिया है और ये सपोर्ट नहीं कर रहे। ये गलत बात है और गलत नज़रिया है देखने का। जैसे मैं आपको ही बता दूं, पिछली बार हम जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे तो यहाँ पर यहीं के एक लद्दाखी लड़के ने फिल्म बनाई, सिकून, स्टेंजिन नाम है उसका, और वो फिल्म यूरोप के हर अवार्ड जीत के गई, लोकल लड़के ने, और उसका DOP लोकल था और उसके सारे एक्टर लोकल थे, और उसने मतलब 100% आप लद्दाखी लोकल फिल्म बोल सकते हैं उसको, वो ग्लोबल अच्छा कर रही है। उसी ने एक और फिल्म शूट की पिछले साल, और बाकी और इस तरह के टैलेंट है म्यूज़िक में। लाइक म्यूज़िक में एक टैलेंट है, प्रॉब्ली आज आप देखेंगे एक लड़का है, उसका नाम मैं आपको भी नहीं बताऊँगा, सरप्राइज़ है, आप स्टेज पे देखें उसको। ही इज़ सिंगिंग इन अ मंगोलियन स्टाइल, थ्रोट ना, वो रेयर है। अब हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, बाकी सुनना और प्रमोट करना वो आप लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें लद्दाखी म्यूज़िक चलाओ, अगर आप ही नहीं सुनना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए ये प्रमोशन में हमसे ज़्यादा जो ओनस है वो आप लोगों का है। अब जैसे फिल्म की बात करें, हम तैयार हैं लद्दाखी फिल्म दिखाने के लिए, हमने एक यहाँ पे थिएटर किया है, हम यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में सिनेमा थिएटर लगाना चाहते हैं, बट हम लद्दाखी फिल्म मेकर्स को इनकरेज करते हैं कि अपनी फिल्म लेके आओ, हम उसको डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, बस कन्वर्ट करके हम आपका थिएटर दे सकते हैं, बट उसमें देखने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा, हम नहीं बुला सकते हैं, हम सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन, हमने बहुत आपके फिल्म्स देखे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे लद्दाख जो है क्षेत्र जो है, यहाँ आर्मी का ज़्यादा प्रभाव है, हर जगह हार्डली कुछ 3 to 4 लाख आदमी यहाँ पर अभी दोनों बॉर्डर्स पे है। तो ऐसे एक्ट्रेस आप आर्मी को क्या मैसेज देना कि यहाँ आर्मी जो है, आर्मी को क्या मैसेज दे हम? आर्मी हमको बचा के रखती है। आपको पता है पिछले कुछ सालों में मनोबल बढ़ाने के लिए आप कुछ मैसेज? उनके मनोबल बढ़ाने के लिए तो हम बॉम्बे से आए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। मैं खुद, मेरे नाना आर्मी में थे, मेरे मामा आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो AMC में थे, उन्होंने चाइना के साथ वॉर लड़ा था, पाकिस्तान के साथ जो 3 वॉर्स हुए, तीनों में भाग लिया था, उनको गोली भी लगी थी पाँव में, और उन्होंने बहुत टाइम लद्दाख में बिताया भी था। तो आई फील अ कनेक्शन टू लद्दाख बिकॉज आई हैव लिसन टू माई नाना स्टोरीज़ कि कैसे, कितनी बर्फ़ में, कितनी मुश्किल में उन्होंने यहाँ लड़ के जीता था। मतलब ओवरऑल वॉर आ गए थे बाद में, बट फिर भी यहाँ पे उन्होंने अपनी पोस्ट को बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। तो मुझे लगता है आर्मी
आर्मी को हम बस एंटरटेन कर सकते हैं, आर्मी तो हमको मनोबल देती है। आर्मी की वजह से हम लोग सेफ हैं। और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ गया, आपको पता ही है। ग्लोबली जो है, जो हमारे नेबर्स हैं, धीरे धीरे दे आर क्लोजिंग इन। सो ये टाइम में हमें आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। But I would love to come back here for a longer time maybe, and you know, because the real fun is when you drive out from here 5-6 hours, so we go to Pangong or something. So those are very beautiful places. Yeah. एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, आप सब लोग, हम अनाउंस करेंगे फेस्टिवल वेन्यू में भी, अगर आप लोग उसको प्रमोट कर सकें कि काफ़ी लोग जो लद्दाख से रिजांगला ड्राइव करके, और ये जो 4th को रिजांगला एंथम रिलीज़ होगा उसमें पार्टिसिपेट करें, तो ये इवेंट सबके लिए ओपन है। तो ये बेसिकली इस जगह से ही एसोसिएटेड है, तो अगर लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। So that is an open invitation, no passes or नो पासेस, एब्सोल्युटली नो पासेस।